video is for my ML project description. I have worked so far on three data sets: COVID patient, salary prediction, and sense data set. I have made a small general workflow which I have used in all three data sets. Okay. Uh, every Bayesian approach, in every Bayesian approach, we have to follow three steps. Uh, where we have to establish our belief about the data, including our prior and likelihood functions, and we use that data, or we use that prior and likelihood to update our model, and then we update our view of the data based on our model that we have made. Okay, and these are the general functions. Like this function is for changing the data types into date, changing the data type into the categorical data, and this is for the KDE plot. Sorry, this is for the simple data plot. If you want to plot your data, and what do you want to know the shape of your data, what is it? And next one is the KDE plot. This is useful. KDE plot, it describes the kernel density estimation. It is used for visualizing the probability density of a continuous variables. Next, this function is for prior prediction. Like before running the sample of your model, you can check your model on prior prediction, whether it is working good or not. After prior, you can plot the prior data and check it again whether it is correct or not. And after checking the prior prediction, we plot our data simply. So this is we fit our model. So this function will be used to fit the model, and again this is used for the post prediction. And this will plot the prediction, post prediction data. And in the last, this is the comparison, okay, between post and posterior, I think, and prior. This is the simple workflow I have followed in each data set. So first we load the data and I have performed some EDA, then checking the distribution of data, so simple plotting the data. And after that, I have found that if you don't know the distribution of data, there is a fitting function which can tell you what is the distribution of your data. Again, you can use the Gaussian inference, means KDE plot, to check the distribution of your data. Then the next step is you can build your model with using prior and likelihood, and run and check your uh, model before sampling it using the prior prediction. So it is really good to always check the prior data. It allows us to make sure that the model can generate the types of data we want or we expect to see. Then sample the data to fit your model. Then assess the convergence, that whether our model is converged or not, and check the summary of data like mu or standard deviations and different parameters of your model. Then run the posterior and check the prediction. Then in the last, I have used the machine learning for comparing both Bayesian and machine learning models. Okay. These are some libraries I have used for applying MCMC or PYMC, and I have used the COVID-19 data. तो यहाँ पे मैंने जो है जो डेटा सेट यूज़ किया है वो COVID-19 का है, जो WHO से मुझे मिला था। तो इसमें तकरीबन 1 लाख के करीब जो है इसके अंदर डेटा है। वो डेटा हमारा कुछ इस शेप का है कि इसमें डेट है हमारे पास, कंट्री है, स्टेट तकरीबन इसमें नल है, जो आगे जाके मैंने इसे
कॉलम को रिमूव कर दिया है, फिर टाइप है कि कंफर्म्ड है कि नहीं है, और देन कंफर्म्ड है तो कंफर्म केसेस कितने हैं पर डे के हिसाब से, क्रिटिकल एस्टिमेशन इनकी क्या है, ये डेज़ एंड डेट के पर डे में डेज़ कितने थे, मतलब टोटल डेज़ ये डेट में से ही निकाल के दिखा रहा है कि कितने डेज़ के बाद आ रहा है आपका डेटा, और यहाँ पे पर डे के हिसाब से कितने डेथ आपके हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा ईडीए हमने परफॉर्म किया है, चेक किया है कि स्टेट्स अगर हम देखें कि यूएस के अंदर पर्टिकुलरली कितने स्टेट्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा स्टेट्स हमारे पास क्या है, नल आ रहे हैं तो उसमें सारे ये नल ही आपको दिखा रहा है। अब हमने देखा कि पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से हमें देखना था कि पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब पर कंट्री कितने कंफर्म्ड केसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कंट्री के हिसाब से चेक किया। तो अगर हम इसे यहाँ पे रन करेंगे, जैसे अफ़गानिस्तान के हिसाब से हम देखें तो टोटल अफ़गानिस्तान के इतने केसेस आ रहे हैं, अल्बानिया के देखें तो इतने केसेस आ रहे हैं, तो पर कंट्री के हिसाब से हमने कंफर्म्ड केसेस यहाँ पे चेक किए। फिर उसके बाद टॉप 10 कंट्रीज़ में हम देखना चाह रहे थे कि हाईएस्ट केसेस हमारे पास क्या हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम डेट में हम देखना चाह रहे हैं कि किस दिन में सबसे कम केसेस आए और किस दिन में सबसे ज़्यादा हमारे पास केसेस आए। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो जो 14 दिसंबर है 2021, नहीं सॉरी, ये इसमें जो है हमने परफॉर्म किया कि सबसे लेटेस्ट हमारे पास डेटा कौन सा है, और सबसे मतलब स्टार्ट डेटा हमारे कब से हमने डेटा जनरेट करना स्टार्ट किया और लास्ट डेटा हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट हमारे डेटा सेट के अंदर देन हमारे पास हमने अपने डेटा को ट्रैक करके चेक किया कि किस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, और देखें एक्सपोनेंशियली हमारे पास जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। देन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जनवरी के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं टाइम के हिसाब से। पर्टिकुलरली किस दिन में सबसे ज़्यादा हमारे पास केसेस थे, तो ये हमारे पास कोई 10 दिसंबर 2020 में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास थे। फिर हमने क्या किया कि हमने कंसिडर किया कि वो सारा हमें वो उन कंट्रीज़ का डेटा चाहिए जिनमें जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो 100 से ओवर हैं, तो हमने सिर्फ वो केसेस कंसिडर किए हैं आगे जाके। तो ये वही सारे केसेस हैं, उनका हमने डेटा लिया, हमने डेटा टाइप्स चेक किए कि कौन सा डेटा टाइप कैसा है जो चेंज करना चाहें तो कर सकें अगर हमारे यूज़ में आगे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पर कंट्रीज़ हमने वैल्यूज़ चेक किए, ठीक है। तो के हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स किस कंट्री के हमारे डेटा सेट में आ रहे हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास यूएस का सबसे ज़्यादा आ रहा है, जापान का, चाइना का, और इंडिया के केसेस रिकॉर्ड जो हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा तो स्टेट का कोई काम नहीं था, स्टेट में सिर्फ NAN का डेटा आ रहा था, अवेलेबल नहीं था डेटा, तो हमने वो कॉलम रिमूव कर दिया उसमें से। फिर हमने चेक किया कि इसमें कोई नल वैल्यूज़ तो अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो अगर नल वैल्यूज़ इसमें मौजूद नहीं, किसी में भी नहीं है, तो हमें कोई जो है इम्पिटिशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चेक किया कि अगर हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ मौजूद है हमारे डेटा सेट के अंदर तो वो भी रिमूव हो जाए। देन यहाँ पे हमने अपने डेटा को कुछ प्लॉट करके शो किया है। अगेन यहाँ पे हम अपने डेटा को प्लॉट करें तो जो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली इस पर जो परफॉर्म किया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूएस के डेटा सेट को उठाया कि जितने भी मतलब जो बेशियन या जो मैंने MCMC का जो मैंने परफॉर्म किया है पूरा प्रोसेस मैंने सिर्फ एक कंट्री के उस पर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा सेट जो लाइंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यूएस के डेटा को उठाया है कंट्रीज़ में से, और उसमें से मैंने कंफर्म्ड केसेस, मतलब ये दो कॉलम जो मेरे फीचर्स अगर आप कहें तो मेरा एक कंट्री का होता है फीचर और एक कंफर्म्ड केसेस का, ये दो फीचर्स पे मैंने काम किया है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल ग्राफ इस पर प्लॉट किया है। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो हमें इस ग्राफ से नज़र आ रहा है जो केसेस हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं काइंड ऑफ। फिर ये मेरे पास है फिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड जो अगर
बाय चांस आपको नहीं पता चलता कि आपके डेटा सेट जो भी डेटा सेट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप फिटिंग का जो है ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बता सकता है कि आपके डेटा सेट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। तो अगर आप देखें इसमें जो एरर आपका सबसे कम होगा आप वही ले लें, तो ये आपके इस काम भी आता है कि आगे जाके जैसे आपको प्रायर बनाना पड़ता है, तो प्रायर के लिए या लाइक्लीहुड के लिए आपको ये काम आएगा कि आपने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। जैसे अगर इसमें सबसे कम एरर मेरे पास एक्सपोनेंशियल का आ रहा है या नॉर्मल का आ रहा है, तो इन दोनों में से बेहतर है कि मैं कोई यूज़ करूँ। ठीक है, और ये आप खुद देते हैं कि वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे गैमा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, नॉर्मल, तो ये मैंने जो यूज़ किया तो उसी के हिसाब से आपको देगा। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको है आते हैं तो इसमें जो फिट हो सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट मैंने के ग्राफ KDE ग्राफ इसमें निकाला है। यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना मॉडल MCMC का हमने बनाया है। तो मॉडल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पास तीन होते हैं, जो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पास होती हैं, एक इंटरसेप्ट ऑफ स्लोप, मतलब जो आपका प्रायर है वही आपको बता रहा होता है, देन आपने अपना लाइक्लीहुड बताना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने लाइक्लीहुड के बाद जो ऑब्जर्व डेटा है उसके अंदर वो शो कराना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट नॉर्मल यूज़ किया है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत मैं इसको कर रही हूँ। तो म्यू और सिग्मा के वैल्यूज़ भी ये भी मैंने रैंडम अपनी तरफ से दिए हैं। स्लोप के लिए भी हमने जो है म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ खुद दिए हैं। हमें पता है कि हमारा जो रिग्रेशन सपोर्ट कर रहा है, जैसे जितने भी वैल्यूज़ या ग्राफ आ रहे थे वो एक्सपोनेंशियल आ रहे थे, तो हमने एक्सपोनेंशियल का सिंपल फार्मूला लगा के यहाँ से अपना ग्रोथ मालूम किया। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो वो हमारे एप्सिलॉन में चला जाए। देन हमने लाइक्लीहुड के लिए भी नॉर्मल का फंक्शन यूज़ किया, और ये एक वेरिएबल है जो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने यूएस का डेटा सेट उठाया तो मैंने यहाँ पे यूएस दे दिया। फिर यहाँ पे हमने अपने मीन के अंदर जो है ग्रोथ डाल दिया, सिग्मा में अपने एरर को, और ऑब्जर्व में जो आपके पास ओरिजिनल डेटा आपका होता है, जैसे हम नॉर्मली वाई से शो कर रहे होते हैं, वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। देन हमने यहाँ पे क्या किया कि रन प्रायर प्रिडिक्शन। तो ये आपके लिए बहुत आसान कर देता है प्रायर प्रिडिक्शन के बिफोर सैम्पलिंग के। अगर आप सैम्पल कर रहे हैं तो सैम्पल करने से पहले या मॉडल को फिट करने से पहले लाजमी है कि आप प्रायर को रन करें, प्रायर प्रिडिक्शन को रन करें। ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपका डेटा प्रायर में ही सही शो नहीं हो रहा है तो आप उसको अपने मीन और सिग्मा के वैल्यूज़ को चेंज करके अपने मॉडल को और बेहतर बना सकते हैं। तो सिंपल इसका कोड भी वैसा ही है जैसे आपके पास जो है नॉर्मल पोस्टीरियर का आता है। तो यहाँ पे हमने उसका ग्राफ बनाया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी, और ये वही वैल्यू है जहाँ ऊपर हमने लाइक्लीहुड में पास किया था। तो हमने कहा कि ये हमें शो करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मसला हमारे पास ये दिखा रहा है प्रायर में कि कुछ केसेस आप देखें कि वो नेगेटिव जा रहे हैं। तो नेगेटिव केसेस तो हमारे पास नहीं हो सकते, तो दिस मीन्स हमें ज़रूरत है कि हम अपने जो है हम अपने मॉडल को चेंज करने की हमें ज़रूरत है, अपने मीन एंड उनकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ वहाँ हमने ज़ीरो एंड समथिंग लिया था, तो यहाँ मैंने चेंज किया। तो चेंज करने के बाद सिंपल मैंने ये चीज़ें चेंज की और दोबारा से इसी चीज़ को रन किया है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ चेंज करने के बाद दोबारा हमने प्रायर रन करके देखा, तो यहाँ हमें प्रायर की वैल्यूज़ कुछ बेहतर नज़र आ रही है, और ये फॉलो भी कर रहा है हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। ये देखें, ज़्यादातर केसेस अगर ज़्यादातर जिसके मार्क्स हैं वो एक्सपोनेंशियल को ही शो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा डेटा बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पे अपने मॉडल को फिट करने की कोशिश की है। फिट करने पे हमने 4 एंड 4 इसके लिए हैं, और ठीक है फंक्शन बिल्ट इन ऊपर से मैंने यूज़ किए हैं, तो उसमें जितने ड्रॉज मैंने दिए हैं 1000 के करीब वो नहीं उठाएगा, जैसे 1000 यहाँ पे ड्रॉ भी हुए। नेक्स्ट फिर जो है हाँ, यहाँ पे हमने अपने मॉडल के कन्वर्जेंस को चेक किया है कि बहुत ही करीब करीब वो कन्वर्ज कर रहा है। हमारे ए बी और एरर्स भी अगर देखें तो वो भी बिल्कुल सी के साथ है। ठीक है, देन हमने एनर्जी
प्लॉट करके देखा तो इसमें यह है कि पहले तो इतना ज़्यादा हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा कन्वर्ज 100% नहीं कर चुका है, लेकिन कुछ हद तक कर चुका है। अगर 100% कर जाता तो ये तकरीबन हमारे साथ होते और इसका 1 के करीब होना लाजमी है। ठीक है, तो 1.1 भी काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है इसमें। ये हमारे जितने चेन्स हैं उन्हीं को डिफाइन कर रहा है। देन ये हमारे प्रीवियस की समरी है। ठीक है, ये हमारे ए का मीन क्या आया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, बी का मीन, बी का, और हमारे पास एरर की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, और आर रेट की जो वैल्यू है उसको देखा जाता है वो भी 1 के करीब होना चाहिए, और हमारे पास ये 1 ही शो कर रहा है। तो दिस मीन्स हमारी समरी बिल्कुल सही, हमें कुछ सही डेटा शो कर रही है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और जो हमारा आर हैट है उसे हमेशा 1 के करीब होना चाहिए। दैन यहाँ पे हम जो है ऐसे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 94% हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, बिलीव की कि जो मतलब 94% हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा है या मीन है वो लाई कर रहा है 112 से 148 के दरमियान। ठीक है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, इसी तरह ये हमारे पास एरर हमारे एप्सिलॉन के लिए। तो मॉडल रन करने के बाद सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पे हमने पोस्टीरियर को चेक किया। अपना पोस्टीरियर करने के बाद मीन्स हम देख रहे हैं कि हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है। तो उसके बाद हमने अपने मॉडल को पोस्टीरियर के सैम्पल्स बनाने के बाद हमने यहाँ पे जो है अपने मॉडल को प्लॉट किया। तो प्लॉट करने के बाद हमारा मॉडल जो रेड कलर का लाइन है वो आपको यही शो कर रहा है, सॉरी, कि ये हमारा मॉडल किस तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। ये हमारा पुराना डेटा है और इसी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है उसको। देन हमने यहाँ पे ml के साथ कंपेयर करके देखा। हमने सिंपल ml लिया और जैसे वहाँ पे हमने यूएस का डेटा उठाया था तो यहाँ पे भी हमने यूएस का डेटा उठाया। कन्फर्म्ड और यूएस दो फीचर थे तो हमने वही दो फीचर्स लिए, डेट को कन्वर्ट किया। ठीक है, ये हमारा डेटा है, इसमें से बाकी सारी चीज़ें हमने ड्रॉप करी। ड्रॉप करने के बाद हमें जो डेटा चाहिए था हमने सिर्फ और सिर्फ वही डेटा उठाया। और ये हमने सिंपल रिग्रेशन के इसमें सॉरी यहाँ पे हमने ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट, उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन से ही काम लेते हुए जो है रिग्रेशन परफॉर्म करी। ये हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं, जैसे ऊपर हमारे पास कॉफिशिएंट दिखा रहे थे ए और बी और सी के, जहाँ पे हमने समरी देख रहे थे। तो ये वही कॉफिशिएंट्स हैं। तो उससे इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये टेस्ट का ग्राफ है जो बिल्कुल इसी तरह एक्सपोनेंशियली हमारे पास डेटा जा रहा है। और नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास टेस्ट का है, ये भी बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। तो तकरीबन जो हमारे पास मॉडल बेसियन का है वो भी वैसे ही काम कर रहा है बहुत अच्छे से, और एमएल का है वो भी वैसे ही काम कर रहा है। तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ें मुझे मतलब इनको इस्तेमाल करते हुए मालूम हुआ है कि एमसीएमसी बहुत ज़्यादा डेटा के को आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत कम है और आपको एमसीएमसी की नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो दिस वुड बी ग्रेट टू वर्क ऑन दिस। क्योंकि एमएल में हमेशा हम पूरा का पूरा डेटा उठा के या पूरी इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे होते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि हमारा डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एमसीएमसी के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ आपका कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है जो आगे आपके काम आएगा। तो बाकी कम डेटा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा सेट है वो मैंने जो है सैलरी प्रिडिक्शन का उठाया है। मैंने जो वर्क फ्लो पर बनाया था तो वो मेरे बहुत काम आया है, वो ही मैंने हर जगह यूज़ किया है तीनों अपने जो है डेटा सेट्स के अंदर। तो इसके अंदर भी मैंने वही सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं, यही फ्लो मैंने फॉलो किया है। यही सारे वो फंक्शंस हैं, इसमें वही वर्क फ्लो है मेरे पास। तो जो चेंज चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ईडीए होगा और मॉडल का होगा थोड़ा बहुत। लाइक ये हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं जो हमने इंपोर्ट की हैं। फिर देन यहाँ पे डेटा सेट को हमने लोड किया है अडल्ट का
कोई डेटा सेट है सैलरी प्रिडिक्शन का, तो ये इसके सारे जो है मेरे पास कॉलम है, और इनकम का कॉलम है। मतलब हम यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50 है या लेस देन इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पे हमने ईडीए परफॉर्म किया। ईडीए परफॉर्म करने पे यहाँ पे सबसे पहले जो काम किया है कि हमने जो ग्रेटर देन का डेटा है 50, क्योंकि टेक्स्ट का डेटा है, उसे हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना लाजमी था उसको प्री प्रोसेस करने के लिए। तो हमने लेस देन का 0 और ग्रेटर देन का हमने 1 काउंट कर दिया, और फिर हमने चेक किया कि हमारा डेटा कन्वर्ट हो चुका है जी। इतना डेटा हमारे पास 0 में आ रहा है, इतना डेटा हमारे पास 1 में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल कॉलम चेक किए कि हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं। टोटल 15 कॉलम है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे वर्क क्लास के हिसाब से डेटा को प्लॉट करके चेक किया कि कहाँ का डेटा सबसे ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज़्यादा हमारे पास है, देन लोकल गवर्नमेंट का है। कुछ डेटा है जिसके अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा, मतलब किस से बिलोंग करते हैं वो। देन यहाँ पे हमने अगेन रेस के हिसाब से डेटा को हमने प्लॉट किया, रेस एंड जेंडर के हिसाब से। लाइक जितना सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो बिलोंग करता है वाइट रेस से और मेल जेंडर से। हमने डेटा भी चेक किया कि कोई नल या ब्लैंक कॉलम्स तो नहीं, ब्लैंक रोज या ब्लैंक सेल तो नहीं है, डेटा कोई ब्लैंक नहीं है हमारे पास। देन कुछ कॉलम्स के नाम, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से माइनस में था, तो मैंने आगे जाके जनरलाइज लीनियर मॉडल यूज़ किए हैं, तो उसमें माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसमें मैंने इसीलिए माइनस हटा के इसमें अंडरस्कोर किए हैं, ताकि मैं फिर नाम चेंज कर सकूँ। उनके नाम चेंज कर दिया हमने यहाँ पे 2 कॉलम के। फिर हमने अपना डेटा सेट बनाया कि ये 4 हमारे पास कोर वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं जिस पे हम काम करेंगे। देन हमने अपना केडी प्लॉट किया, फिर हमने अपना मॉडल बिल्ड किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीएलएम यूज़ किया है। जीएलएम के अलावा एक जो न्यू प्रोवाइड किया है पीवाईएमसी ने, उसका नाम बैम्बी है। तो कुछ मेरे पास जो है कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं हो रही थी मेरे पास बैम्बी की, जिसकी वजह से मुझे जीएलएम ही यूज़ करना पड़ा। अदरवाइज़ बैम्बी ज़्यादा इजी है बनिस्बत आपके जीएलएम के। तो जीएलएम भी खासा इजी है। इसमें यहाँ पे आप अपना देते हैं कोड वेरिएबल के किससे रिलेटेड आप अपना डेटा वो कर रहे हो, या आप अपना वाई वेरिएबल समझ लें। तो हमने कहा कि एज, एजुकेशन और आवर, मतलब वर्क पर आवर कितना कितना, मतलब वो काम किया है उन्होंने। ठीक है, फिर आपका कंप्लीट डेटा सेट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हो। देन सैम्पल और ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मैंने देखा है जितना आप ट्यून करोगे उतनी ज़्यादा कन्वर्जेंस में आपको आसानी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बड़ी मुश्किल से ये कन्वर्ज हो पाया है जितना हो पाया है। फिर ये बेहतर हो सकता था, लेकिन इतना टाइम नहीं था, क्योंकि काफ़ी 16 आवर्स ये ले रहा था कन्वर्ज होने में, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको और बेहतर कर सकी। तो आप देख सकते हैं कुछ फ़र्क इस पे नज़र आ रहा है। चारों डेटा सेट्स के लिए आप आसानी के साथ अपने ट्रेस में चीज़ें चेक कर सकें कितने वेरिएबल पे आपने काम किया है। वेरिएबल का डेटा जो प्लॉट किया है या सैंपल में आया है, उस सैंपल को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिर वही समरी है जिसमें हमारे पास एक कोफिशिएंट्स है, आप समझ लीजिए। जो आपके पास स्टैंडर्ड एंड मीन है, अगर आप ग्राफ के ज़रिए किसी चीज़ को चेक नहीं कर सकते, तो आप जो है उसको मीन एंड स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन के इन वैल्यूज़ के ज़रिए अपनी मशीन लर्निंग को कंपेयर करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं इनके। आर हैट हमारा यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इसके अलावा जो है हमने अगेन, अगर आप वैसे कोफिशिएंट चेक करना चाहें तो इनके मीन वैल्यूज़ अलग से निकालें। ठीक है, अगर जैसे वहाँ पे एक साथ निकालें, अलग निकालना चाहें तो आप अपना ट्रेस प्लॉट करके उनको अलग भी निकाल सकते हैं, ईच एंड एवरी वेरिएबल जो भी आपने लिया हुआ है इसमें। फिर हमने यहाँ पे मार्जिनल और एनर्जी ट्रांजिशन का प्लॉट बनाया है। ठीक है, 1.2 थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि गैप ज़्यादा है, उसको कन्वर्ज करने के लिए ट्यूनिंग और उसकी ज़रूरत है बहुत। देन ये हमारे पास पेयर प्लॉट है, ये आपको बताते हैं कि आपका डेटा डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ पे।
ये अगेन सेम थिंग, ठीक है। ये आपको आपकी प्रोबेबिलिटी है पर वेरिएबल के, आपका वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक 94% या कितने परसेंट जो है वो सही है। देन एक और मॉडल हमने चेक किया है, ऊपर जीएलएम हमने किया था, तो जीएलएम के अलावा एक और मॉडल हमने यहाँ पे चेक किया है, ठीक है। सिंपल मॉडल, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट हैं, जैसे आपका ये वाला आपका प्रायर हो गया। प्रायर के बाद आपने डिटर्मिनिस्टिक, मतलब जो भी वैल्यूज़ आपको मालूम है आपके प्रायर के साथ आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपने मॉडल के साथ क्या करेंगे, उसको मर्ज करके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्ट का बता दिया, स्टेप्स बता दिए। अलग से कॉफिशिएंट इसके भी हमने मालूम किए हैं। ये कॉफिशिएंट है, ऊपर भी सेम कॉफिशिएंट दे रहा है, इस मॉडल के लिए भी सेम कॉफिशिएंट दे रहा है। दोनों मॉडल्स में कोई फ़र्क नहीं है, तकरीबन चीज़ें हमारे पास सेम है। तो अगेन कंपैरिजन के लिए हमने मशीन लर्निंग यूज़ किया, तो हमने इनकम का डेटा उठाया, तो सिर्फ इसके कॉफिशिएंट निकाल के हमने यहाँ पे कंपेयर किए। तो दोनों के मतलब मशीन लर्निंग में और इसमें काफ़ी फ़र्क है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, पर्सनली फील दैट। लेकिन मसला ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैं जो है जो एमसीएमसी का मॉडल है उसको मैं ज़्यादा बेहतर नहीं बना पाई कि वो मशीन लर्निंग जितना अच्छा हो सके इस डेटा सेट के अंदर। नेक्स्ट सेल्स का डेटा है। अच्छा, ये डेटा बेसिकली हमारे पास जो है टाइम सीरीज़ का है, लेकिन जस्ट चेक करने के लिए मैंने ये यूज़ किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोविड का डेटा भी, क्योंकि मैंने डेट और कंफर्म्ड केसेस में किया था, तो इसमें भी मैं यही चेक कर रही थी, तो सारी चीज़ें तकरीबन एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने अपना एक वो बना के रखा था, उसमें मॉडल उसी के हिसाब से चल रहे हैं, फ्लो वर्क फ्लो। तो ये डेटा है, इसके हमने चेक किया कि वैल्यूज़ में अगर कोई नल वैल्यू नहीं है, देन डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमने हटाए और डेटा को प्लॉट किया। तो ये भी एक्सपोनेंशियल डेटा हमें दिखा रहा है डेटा की ग्रोथ में। देन मॉडल बिल्ड किया हमने, डेट एंड टाइम में उसको चेंज किया, ठीक है। कुछ कॉलम्स हमने ऐड किए अपने डेटा के अंदर। सेम मैंने वही मॉडल यूज़ किया जो हमने फर्स्ट वाले में यूज़ किया है। प्रायर चेक किया, तो उसमें मुझे प्रायर भी कुछ सही नहीं बना। अगेन मैंने डेटा की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज की हैं, म्यू और ये वाली चीज़ें। तो जस्ट डेटा माइनस में आ रहा था, वो प्लस में तो आ गया, लेकिन एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो नहीं आई इसमें। तो मैंने इसी पे ही मॉडल को फिट करके चेक किया, तो यहाँ पे तो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन कन्वर्जेंस इसकी 100% अच्छी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। पोस्टीरियर भी जब रन किया, तो पोस्टीरियर का भी मेरे पास ये कुछ बेहतर नहीं आया, हालांकि इसमें मशीन लर्निंग में और उसमें थोड़ा सा, अगर लेकिन इसमें मशीन लर्निंग भी देखा जाए तो कोई ख़ास इसका फ़्लो नहीं बन रहा है। तो ये टेस्ट डेटा पे मशीन लर्निंग का आया है, तो इसमें जो मैंने मतलब निकाला, अगर मशीन लर्निंग के हिसाब से देखा जाए और वो भी सही आंसर नहीं दे रहा है, तो शायद मे बी इसके डेटा में कुछ मसला हो, या मुझे जो है टाइम सीरीज़ का डेटा इस तरह यूज़ नहीं करना चाहिए था इसके अंदर। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम था कुछ करने के लिए इसमें, तो अ, मैंने सोचा कि इस पे भी काम किया जाए थोड़ा बहुत। थैंक यू वेरी मच।